اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عنوان چہارم، معرفت آخرت۔ واضح ہو کہ کوئی شخص اس وقت تک آخرت کے حقائق سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ موت کی حقیقت کا شناسہ نہیں ہو سکتا، اور معرفت حقیقت موت زندگی کی حقیقت کو پہچان سے وابستہ ہے، اور زندگی کی حقیقت روح کی معرفت پر مبنی ہے، اور روح کی حقیقت نفس کی حقیقت کو جاننے کا نام ہے، جس کے بعض پہلوؤں کے بارے کسی حد تک قبل ازیں رقم کیا جا چکا ہے۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ انسان کی ترکیب دو چیزوں سے عبارت ہے، یعنی نمبر 1 روح اور نمبر 2 جسم۔ روح کی حیثیت بمنزلہ سوار اور جسم بطور سواری ہے، اور آخرت میں روح جسم کے باعث جنت یا جہنم میں ایک خاص حالت میں ہوگی، البتہ از خود بھی ایک حالت میں ہوگی جس میں جسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، یعنی روح کی کیفیت بلا شرکت جسم ہوگی، اور اس کے سوا بھی جسم کو سعادت و خوش نصیبی یا بدبختی حاصل ہو سکتی ہے۔ دل کو جو نعمتیں اور لذتیں بدن کے بغیر میسر ہوتی ہیں انہیں ہم روحانی جنت سے موسوم کرتے ہیں، بینا ہی جسم کے بغیر جو مصائب و الام اور شقاوت و بدبختی نصیب ہوتی ہے اسے روحانی جہنم سے موسوم کرتے ہیں۔ ہاں، وہ جنت یا جہنم جو جسم سے متعلق ہیں ان کی کیفیت ظاہر ہے کہ وہ باغات، اشجار، انہار، حور و غلمان، خواکے اور مشروبات وغیرہ کی صورت میں میسر ہوں گے، اور جہنم کی بھی کیفیت ایسے ہی ہے کہ اس میں سانپ، بچھو، تھوہر اور دیگر تکلیف دہ چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسی جنت اور ایسے جہنم پر قرآن و سنت ناطق ہیں، اور ہر ایک بخوبی سمجھ سکتا ہے، جس کی تفصیل احیاء العلوم والدین کے باب ذکر موت میں درج کر چکے ہیں، اور یہاں اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ حقیقت موت اور روحانی جنت و جہنم۔ ذیل میں موت کی حقیقت اور روحانی جنت اور جہنم کے مفہوم و مطالب بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان سے ہر کسی کو واقفیت نہیں ہے، اور جو یہ فرمایا گیا ہے ہم نے اپنے صالحین بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، اور نہ ہی اس کی شان و شوکت کی مکمل صفت کو سنا، اور نہ ہی اس کی رفت و عظمت کا حال قلب بشر پر وارد ہوا۔ تو یہ روایت روحانی جنت ہی کے متعلق ہے۔ ہاں، دل میں ایک ایسا روشن دان ہے جو صرف عالم ملکوت کی طرف ہی کھلا رہتا ہے، اور اسی سے اس کے مفہوم و مطالب عیاں ہوتے ہیں۔ پھر جس کسی انسان پر یہ راہ واضح ہو جائے اسے اس کی صداقت میں ذرہ برابر شک نہیں رہتا، بلکہ اس کا آخرت کی سعادت و شقاوت پر ایمان کامل ہو جاتا ہے، کیونکہ صداقت کا چراغ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ مگر یہ سعادت نکالی و بہروپیہ پن سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ بصیرت اور فراست قلبی کے مشاہدہ کی مرہون منت ہوتی ہے۔ جیسے کہ دنیوی طبیب جسم کے بارے معلومات رکھتا ہے کہ اس میں سعادت بھی ہے اور شقاوت بھی، بلفاظ دیگر جنہیں صحت اور علالت سے موسوم کرتے ہیں نیز ان کے لیے اسباب بھی ہیں۔ یوں ہی مشاہدہ قلب سے معلوم ہو جاتا ہے کہ روح کے لیے سعادت بھی ہے اور شقاوت بھی۔ سعادت کی دوا عبادت و معرفت ہے، جبکہ معصیت و جہالت اس کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ ایک بیش بہا اور نہایت قیمتی علم ہے، مگر علماء ظاہر اس سے غافل ہیں، بلکہ اس کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک بہشت و دوزخ جسمانی ہی ہے، اور آخرت کی معرفت پر اعتماد محض شنید پر ہے، یا نقل کردہ روایات کے علاوہ کسی اور بات کی خبر تک نہیں۔ الحمدللہ ہم نے ان جملہ امور کی وضاحت اپنی عربی تصانیف میں کر دی ہے، اور زیر نظر کتاب کیمیائے سعادت میں ضرورت کی حد تک رقم کر دیا ہے، جو طالبین کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ مگر جو بدباطن تعصب کا شکار ہیں وہ اس سے کچھ بھی نہ حاصل کر پائیں گے۔ ہاں، پاکیزہ باطن، صاف دل اور دانش مند اسے اپنے قلبی استحکام کے لیے بے حد مفید پائیں گے۔ گو آخرت کے معاملہ میں
लोगों का ईमान पल भला कमजोर और गैर मुस्तहकम होता है। फसल, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। अजीजम, अगर तू मौत की हकीकत से कदरे आगाही की तमन्ना रखता है तो तुझे पहले ये मालूम होना चाहिए कि इसके मानी क्या है। बस समझ के इंसान की रूहें दो हैं, एक हैवानी, दूसरी इंसानी। हैवानी रूह का मरकज दिल है और सीने की बाईं जानिब है। दूसरी रूह जो जिन से मलाइका से है वो एक लतीफ से बुखार की मिसल है जो हैवान के बातनी इखलात से है और वो इतदाली मिजाज की हामिल है। ये दिल से रगों का बायस ज़वारिब, नब्जों से गुजरती हुई दिमाग और दीगर अज़ा में सरायत करती है। ये रूह हरकातो हसास की कुव्वतों से मुरस्सा है। जो दिमाग में पहुंचती है तो उसकी हरारत में कमी वाक़या हो जाती है, नेज़ मजीद मोतदिल बन जाती है। इसी से आंखें कुव्वत बेनाई और कान कुव्वत सुनवाई से मुस्तफीज होते हैं। दीगर जुमला हवास भी इसी से कुव्वत हासिल करते हैं। ये चिराग की मिसल है, जब इसे मकान में जलाया जाता है तो घर के दरो दीवार रोशन हो जाते हैं। बस जैसे चिराग यानी बल्ब, ट्यूब, गैस वगैरह की रोशनी दीवारों पर नमूदार होती है, इसी तरह कुदरत खुदावंदी से कुव्वत बेनाई और सुनवाई नेज़ दीगर हवास इसी रूह के बायस आज़ा में नुमाया हो जाते हैं। हाँ, अगर कभी रगों में कोई रुकावट, सद, गांठ, गिरा वगैरह पैदा हो जाए तो इससे आगे वाले अज़ा बेहसो हरकत हो जाते हैं, जिसके बायस कहा जाता है कि फालिज हो गया। फिर तबीब या डॉक्टर इस रुकावट को दूर करने की काविश करते हैं। नेज़ इस रूह की मिसाल चिराग की आग सी है। दिल बत्ती और गिजा तेल के कायम मुकाम है। जैसे चिराग से तेल निकालने पर चिराग बुझ जाता है, ऐसे ही गिजा बंद कर दी जाए तो रूह का मोतदिल मिजाज मुअत्तल होकर रह जाता है और हैवान मर जाता है। जैसे चिराग में तेल तो हो मगर कम हो कि बत्ती पूरी तरह सप्लाई न कर सके तो वो भी खराब हो जाती है। खुश्क हो जाने के बायस वो मजीद तेल नहीं खींच सकती। यूं ही दिल ज्यादा वक्त गुजरने के बायस कमजोर हो जाता है और गिज़ा कबूल करने से इनकार कर देता है। जैसे चिराग पर किसी चीज को फेंक दिया जाए तो वो बुझ जाता है, गो उसमें बत्ती और तेल मौजूद हो। ऐसे ही अगर कोई हैवान शदीद तरीन जख्मों की ताप ना ला सके तो वो मर जाता है। ये रूह अगर मोतदिल मिजाज रहे जैसे रहने का हक है तो लतीफा कैफियात कुव्वत, हवास, हरकात को कबूल कर लेती है और अल्लाह ताला के कानून व ज़वाबत के मुताबिक मलाइका के अनवार तजल्लियात से मुस्तफीज होती रहती है। लेकिन इसका मिजाज भी गलबा हरारत व बरूदत या किसी और फितरी वजह से मुअत्तल हो जाता है तो वो अनवार तजल्लियात के असरात को कबूल करने से कासिर रहती है। जैसे आईना जब तक वो साफ व शफाफ रहेगा सूरतों के अक्स नुमाया रहेंगे, मगर जैसे ही उसे जंग ने आ लिया उसने सूरतों के अक्स कबूल करने से इनकार कर दिया। उसका सबब ये नहीं कि आईना से सूरतें कहीं गायब हो गई हैं या वो मिट चुकी हैं, बल्कि असल सबब वही मज़कूर हुआ। बस जब हैवानी रूह में हवास व हरकात के कबूल करने की सलाहियत सल्ब हो गई तो वो मलाइका के अनवार तजल्लियात और दीगर फवाइद से महरूम और बेहस व हरकत पड़ी रहती है, जिसे हम मौत से ताबीर करते हैं। मर्गे हैवानी का यही मतलब है। जो आदमी रूह हैवानी का इतदाल दूर करने के असबाब जमा करने वाला है वो अल्लाह ताला के बंदों में से एक बंदा है जिसे मलकुल मौत कहते हैं। लोग सिर्फ उसके नाम से ही वाकिफ हैं, इसलिए कि उसकी हकीकत से आशना होना मुहाल है। बहरहाल मर्गे हैवानी का यही मफहूम है। अलबत्ता मर्गे इंसानी दीगर वजूह पर मुश्तमिल है, इसलिए कि जहां उसमें रूह हैवानी पाई जाती है वहां एक और रूह का वजूद भी है जिसे हम रूह इंसानी से ताबीर करते हैं। इसी का नाम दिल हुआ, जैसा कि पहली फसूल में मज़कूर हुआ। रूह इंसानी रूह हैवानी की जिन्स से नहीं है, जो कि एक हवाई लतीफ की मिसल एक जिस्म है और तेज बुखार की तरह मुसफ़ा। रूह इंसानी जिस्म से पाक है, इसलिए कि ये तकसीम नहीं हो सकती। मारिफत इलाहिया इसी रूह में ज़हूर पजीर होती है। जैसे अल्लाह ताला वाहिद व यकता नाकाबिले तकसीम है, वैसे ही इसका ज़हूर
ऐसे ही जिस्म में होगा जो तकसीम पजीर न हो, बल्कि किसी ऐसे ही जिस्म में जाहिर हुआ करती है जो खुद अदीमुन नजीर और नाकाबिल तकसीम हो। मसलन चराग ही को लीजिए, इसमें बत्ती है, आग और रोशनी है। इसमें बत्ती जिस्म की तरह है, आग रूहे हवानी की मानिंद और रोशनी या नूर रूहे इंसानी की मिसाल है। जैसे चराग का नूर चराग से लतीफ तर है, गो इसकी तशरीह नहीं की जा सकती, मगर अजरुए लताफत मिसाल तो दी जा सकती है, वरना किसी और तरह मतलब का वाज़े करना कारेदारद, क्योंकि चराग का नूर चराग के ताबे है। गोया चराग असल और इसका नूर फरा है। चराग बुझा तो नूर भी खत्म हुआ, जबकि रूहे हैवानी रूहे इंसानी की ताबे नहीं, बल्कि रूहे इंसानी आज खुद असल है। रूहे हवानी के खात्मा से रूहे इंसानी की मौत वाक़या नहीं होती। इससे ज्यादा उम्दा और वाज़े मिसाल मतलूब हो तो यूं समझिए कि नूर चराग से बजाते खुद कहीं ज्यादा लतीफ है, और चराग का वजूद इसी का मरहून मिन्नत है, ना कि नूर का वजूद चराग से। फिर रूहे हैवानी जो दरअसल रूहे इंसानी की सवारी है और मन वजह इसका हथियार है, अगर ना रहे यानी मर जाए तो रूहे इंसानी फिर भी अपने मुकाम पर बरकरार रहती है। ताहम इसका मामला फिर ऐसे सवार की तरह होता है जिसके पास ना सवारी हो ना हथियार। ताहम सवारी के मर जाने से सवार तो नहीं मरता, सिर्फ इतना ही तो होता है कि अब सवार सवारी और हथियार से महरूम है। ताहम उसे जो हथियार दिया गया था, इसकी गर्ज तो सिर्फ यही थी कि वो इसके जरिए मोहब्बत और मारिफत खुदाबंदी को शिकार करे। फिर अगर इस हथियार से शिकार को अपने काबू में ले आए तो उसके मादूम हो जाने के बावजूद उसकी महरूमी नहीं, बल्कि हिफाजत व आफियत का बायस बन गया और उसके बोझ से भी बच गया। सैयद आलिम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मौत तो ईमानदार के लिए तोहफा व हदिया है। इसका यही मफहूम है कि शिकारी जाल को कंधों पर उठाए फिरता है, जब शिकार हाथ आ जाता है तो जाल को उतार फेंकता है। गोया के शिकार के हाथ आ जाने की सूरत में जाल के बोझ को उतार देना ही राहत व सुकून का सबब मुनासिब है। खुदा न खास्ता शिकार के पकड़ने से कबल ही ये हथियार जाया हो जाए तो शिकारी की पशेमानी और हसरत व मुसीबत की कोई हद नहीं होगी, और इस हसरत व पशेमानी का आगाज अज़ाबे कब्र से होता है। फसल जिंदगी हाथ पांव से इबारत नहीं। बस समझ लीजिए कि किसी इंसान के हाथ पांव मफलूज हो जाए तो वो फिर भी जिंदा रह सकता है, क्योंकि उसकी जिंदगी ना हाथों में है और ना ही पांव में, बल्कि हाथ पांव तो महज औजार हैं और इंसान इन्हें बुरुए कार लाने वाला है। ऐ इंसान, जिस तरह तेरी बुनियाद हाथ पांव नहीं, इसी तरह तेरी हकीकत तेरी पुश्त, पेट और सर या जिस्म से वाबस्ता नहीं, बल्कि ये तो सभी रद्दी का टुकड़ा साबित होंगे और ऐन मुमकिन है फिर भी तू जिंदा रहे। मौत इसका नाम नहीं कि तेरा जिस्म काम करना छोड़ दे यानी मफलूज हो। हकीकतन यहां मफलूज का मफहूम ही कुछ और है, और वो ये कि जिस्म तेरी फर्माबरदारी से दस्तकश हो जाए। जिस्म में तेरी अताअत व फर्माबरदारी की सिफ्त पैदा की गई थी, वो महज एक सिफ्त थी जिसे हाथ की ताकत या कुव्वत कहा गया है। गोया कि वो सिफ्त एक नूर है जो रूहे हैवानी के चिराग से हाथ तक पहुंचा, लेकिन रगें जो इस नूर को वहां तक पहुंचाती हैं, इनमें ही कोई रुकावट पैदा हो जाए तो हाथ की कुदरत और ताकत जवाब दे देती है, तो वो फर्माबरदारी से माजूर हो जाता है। यूं ही तेरा तमाम वजूद जो हमतन गोश तेरी अताअत व फर्माबरदारी के लिए तैयार रहता है। इसके और तेरे दरमियान जो रब्तो ताल्लुक का बायस है वो इसी रूहे हैवानी का करिश्मा है। बस जब रूहे हैवानी के मिजाज इतदाल में कमी रूनुमा हुई तो उसका मिजाज खत्म होकर रह जाएगा और इताअत से इनकारी होगा। इसी का नाम मौत है। हालांकि तू जिंदा मगर तेरा अताअत गुजार अपनी जगह न रहा, बस तेरा जिस्म तेरी हकीकत कैसे हो सकता है? अगर तू मामूली सा भी गौर करे तो तुझे पता चलेगा कि तेरे मौजूदा अज़ा वो नहीं जो बचपन में थे,
اس لیے کہ وہ تو بے تمام ہی بخارات کے سبب تحلیل ہو گئے ہیں اور غذا کے سبب ان کا نیم البدل تجھے نصیب ہو گیا، لہٰذا تیرا جسم وہ نہیں، گو تو خود وہی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ تیری حقیقت کو تیرے جسم سے وابستہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ موت کی وادی میں جاتا ہے تو جانے دو۔ تو اے انسان، تو اپنی ذات میں ویسے ہی زندہ ہے اور زندہ رہے گا اگرچہ تیرا جسم تباہ و برباد ہو جائے۔ اے انسان، تیرے اوصاف دو قسم کے ہیں، ایک جن میں تیرا بدن شریک ہے، یعنی بھوک، پیاس اور نیند وغیرہ، اور یہ مادہ اور جسم کے بغیر کوئی وجود نہیں رکھتے، موت سے ان کا یہی خاتمہ ہوتا ہے۔ لیکن دوسری قسم وہ ہے جن میں جسم شریک نہیں ہوتا، جیسے معرفت خداوندی اور نظارہ جمال الہی سے حاصل ہونے والی راحت و مسرت اور شادمانی۔ تیری ذات کی یہی صفت ہے جو تیری رفیق ہے، انہی کا نام الباقیات الصالحات، یعنی وہ پاکیزہ اعمال جن کو کبھی فنا نہیں، اور اگر معاملہ اس سے مختلف ہے، معرفت ذات حق تعالی سے نابلد ہے، غفلت و جہالت کا شکار ہے، تو یہ بری صفت بھی تیرے ساتھ رہے گی اور تیری روح اندھے پن پر دلالت کرے گی اور تیری بدبختی اور شقاوت پر دال ہوگی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو اس زندگی یعنی دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں اندھا ہے اور بھی زیادہ۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اے انسان، جب تک تو ان دونوں روحوں یعنی روح حیوانی و انسانی کے فرق اور ان کے باہمی تعلق کو نہیں سمجھے گا، موت کی حقیقت سے بھی نا آشنا ہی رہے گا۔ فصل۔ عالم سفلی و عالم علوی کی حقیقت۔ واضح ہونا چاہیے کہ روح حیوانی عالم سفلی سے ہے اور یہ چار چیزوں کا مرکب ہے: خون، بلغم، صفرا اور سودا، اور ان چاروں کا اصل پانی ہے، آگ، مٹی اور ہوا ہے، اور ان کی اختلافی و اعتدالی کیفیت کا انحصار گرمی، خشکی اور تری پر ہے۔ اسی بنا پر فن طب کا مقصود ہی یہ ہے کہ روح کے ان چاروں عناصر پر نظر رکھے تاکہ روح حیوانی اس لائق ہو کہ روح انسانی کے لیے بطور سوار اور ہتھیار کام دے سکے، اور روح انسانی عالم سفلی سے نہیں بلکہ عالم علوی اور جوہر ملائکہ سے ہے۔ عالم سفلی میں اس کا وجود فقط ایک غریب الوطن مسافر کی طرح ہے، نیز عالم سفلی میں روح انسانی کا آنا اس کی اپنی خواہش کا نتیجہ نہیں، بلکہ اسے تو ایک سفیر کی طرح اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ اپنا سوانح سفر حاصل کر سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی اور آیت آئے تو میری ہدایت کا پیرو ہو، اسے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم۔ سورہ البقرہ۔ نیز اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے، میں مٹی سے انسان بناؤں گا، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدہ میں گرنا۔ سورہ سواد۔ ان دونوں آیتوں میں دونوں روحوں کے متعلق ہونے کی طرف لطیف سا اشارہ ہو رہا ہے۔ ایک کی مٹی سے نسبت دی کہ میں انسان کو مٹی سے بنانے والا ہوں، پھر بنایا تو فرمایا میں نے اسے مٹی سے بنایا، یہی اعتدال کی طرف مشیر ہے۔ پھر فرمایا اس میں اپنی طرف سے روح پھونکوں گا، اس ارشاد سے اسے اپنی ذات سے نسبت دی، گویا کہ ایک خاکی نسبت اور ایک روحانی نسبت۔ اسے مزید سمجھنے کے لیے اس مثال کو پیش نظر رکھیے کہ کوئی شخص سفید کپڑے کو اس طرح بنائے کہ اسے آگ پکڑے اور پھر آگ کے پاس لے جا کر آگ پر پھونک لگائے تاکہ کپڑا آگ کو قبول کر لے۔ جس طرح روح سفلی حیوانی کے لیے ایک حد اعتدال متعین ہے اور طبیب اس تعین اعتدال سے واقف ہے تاکہ بیمار کو بیماری سے بچا سکے، تاکہ ہلاکت سے محفوظ رہے، اسی طرح علوی روح انسانی کے لیے بھی ایک اعتدالی راہ اپناتی ہے جو کہ حقیقت دل سے موسوم ہے، جس کی حفاظت و صیانت کے لیے علم اخلاق و ریاست ہے تاکہ روح انسانی کو حد اعتدال پر رکھے اور اس کی صحت و تندرستی کا باعث ہو۔ عنقریب ارکان مسلمانی کے بیان میں اس کی مزید تشریح کی جائے گی۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ جب تک انسان حقیقت روح کی معرفت حاصل نہیں کر سکے گا
उस वक्त तक उसका महज अपनी बसीरत से आखिरत की हकीकत को पहचानना मुमकिन नहीं होगा। बाइना ही जैसे मारिफत नफ्स के बगैर मारिफत हक ताला मुमकिन नहीं। अपने आप को पहचानना ही कलीदे मारिफत है और अरवाह की हकीकत की पहचान आखिरत को पहचानने की चाबी है। और बिनाए दीन यही है कि यौम आखिरत पर ईमान रखा जाए। यही वजह है कि हमने जिक्र मारिफत को अव्वलियत दी। अलबत्ता बाज राजों में से एक राज से हमने पर्दा नहीं उठाया, हालांकि वही इसकी असल बुनियाद है, लेकिन इस राज को खोलने की इजाजत नहीं। इसी बिना पर खामोशी इख्तियार कर रखी है, इसलिए कि इसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। हालांकि मारिफत हक ताला और मारिफत आखिरत को समझना कुल्ली तौर पर इसी पर मुनहसर है। ताहम तुझे चाहिए कि मुजाहदा और रियाजत से इसकी तलब व जुस्तजू में कोशिश करते रहो, ताकि किसी हद तक तो पहचान हो सके। इसलिए कि दूसरों से सुनने की तुझ में इस्तिताअत पैदा नहीं हो सकती, इसलिए कि बहुत से लोगों ने अज़मत व शान इलाही को दूसरों से सुना मगर तस्लीम ना कर सके। जब उनमें सुनने की ताब ही न रही तो इनकार करते हुए कहने लगे ये मुमकिन ही नहीं। फिर उसकी तंजिया को मानने से ही गए, बस इसे तअत्तुल का नाम दिया जाएगा। फिर तू इंसान के हक में उसके सुनने की ताकत किससे पाएगा, जब अज खुद अल्लाह ताला की शान में ऐसी सिफ्त का बयान ना कुरान में है ना ही हदीस शरीफ में। यही बात लोगों के इनकार का बायस है। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम फरमाते हैं, लोगों से उनकी सलाहियत के मुताबिक बात करो, जो उनकी अक्ल से बालातर हो वो बात ना करो। बाज अंबिया कराम पर वही नाजिल की गई कि अल्लाह ताला ने फरमाया, हमारी सिफात के मुतल्लिक लोगों से ऐसी बात ना कीजिए जिनका समझना उनके लिए मुमकिन नहीं। उनसे सिर्फ वही कलाम करो जो वो समझ सके, वरना ना समझने के बायस जाहिर है वो मुनकर ठहरेंगे और इनकार उनके लिए मौजब खुसरान होगा। फसल, जान, जात और मौत। जो कुछ मज़कूर हुआ, इन तमाम तफसीलात से तुझे पता चल गया कि इंसान की जान उसकी जात से कायम है और वो जिस्म के बगैर भी बतौर जात ही है। यानी इस जात की तरकीब खसूसी सिफात खमीर व कालिब की शक्ल सूरत से बेनियाज है। मौत का मतलब ये नहीं कि वो जात नीस्तो नाबूद हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि उस जात का तसर्रुफ जिस्म से अलहदा हो जाए। यूं ही हश्र नश्र बेसो इयादत का ये मफहूम है कि इसके नीस्तो नाबूद होने के बाद इसे नए सिरे वजूद में लाया जाएगा, बल्कि इससे मुराद ये है कि इस जात को फिर जिस्म मुहैया होगा और वो उसे फिर अपने तसर्रुफ में लाएगी जैसे इब्तिदा में था। और उसका होना आसान तर बात है, इसलिए कि पहली बार जिस्म और रूह की तख्लीक अमल में लाना लाजमी था और दूसरी बार रूह अपनी जगह कयाम पजीर होगी, बल्कि अरवा इंसानी जिस्म के अज़ा में मौजूद होंगी और दोबारा तख्लीक करने की बनिस्बत उनका बाहिम जमा करना आसान तर होगा। बेशक ये तोज़ीह हमारी हद फरासत के मुताबिक है, वरना जहां हकीकत है वहां वस्फ़े इंसानी को फजले इलाही से क्या ताल्लुक हो सकता है। यानी फजले खुदावंदी सहूलतों का मोहताज नहीं, इसलिए कि जहां दुश्वारी ना हो वहां आसानी भी नहीं होती। इंसान के दोबारा जिंदा करने का ये मफहूम भी नहीं कि उसे लाजमी तौर पर दोबारा वही जिस्म दिया जाएगा जो पहले उसके तसर्रुफ में रहा, इसलिए कि बदन की हैसियत तो सवारी की है। अगर उसे बदल दिया जाए तो सवार बहरहाल वही होगा जो पहले पहली सवारी पर था। और ये तो उसका तजुर्बा भी है कि वो बचपन से बुढ़ापे तक आबोदाने की तब्दीली और इख्तलाफ मिकदार के सबब अपनी हालतों में तब्दीली पाता रहा है। हालांकि होता तो वही है जो इब्तिदाए आफरीनिश में था। लिहाजा जिन लोगों ने इसे लाजमी करार दिया वो तरह तरह के शुकूक व शुबहात और अशकाल का शिकार हो गए और उनसे अपने ही वारिद किए गए इतराजात के जवाब ना बन पाए। अगर कोई जवाब दिया भी तो गैर माकूल, हालांकि वो ऐसे तकल्लुफात से बेनियाज थे। रहा मामला सवालात करने वालों का, तो वो तो यहां तक कह देते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी को खा जाए तो इन दोनों के अज्जा मिलकर एक हो जाएंगे। ऐसी सूरत में रोज़े हश्र दूसरी बार वो अज़ा किसे दिए जाएंगे। यूं ही अगर किसी के बदन का कोई टुकड़ा काट कर दूसरे शख्स से पाबंद कर दिया जाए तो जब वो शख्स इबादत करेगा
तो ऐसी सूरत में इबादत के सवाब का वो उज़्व भी मुस्तहिक होगा या नहीं? और अगर वो मुस्तहिक सवाब नहीं होगा तो क्या वो शख्स जन्नत में इस उज़्व के बगैर होगा, यानी उसके हाथ पांव या आंख वगैरह नहीं होगी, जबकि वो इबादत में शरीक ही नहीं था? लोग तो ऐसे ही बेतुके उल्टे सीधे सवालात करते रहते हैं और वो उन्हें निहायत तकलीफ और परेशानी के आलम में जवाब देते हैं। हालांकि इन अहमकों के एतराज़ात पर कान धरने की चंदा जरूरत नहीं, फिर जवाबात की क्या जरूरत? ऐ इंसान, जब तूने हयात बादल ममात की हकीकत को किसी हद तक जान लिया कि रूह पहले ही जिस्म की मोहताज नहीं होगी, और ऐसे अशकाल लोगों के जहन में इसलिए ही पैदा हुए कि तेरी जात और हस्ती की हकीकत बस तेरे जिस्म से ही वाबस्ता है, लिहाजा जब तक ये जिस्म अपनी असली हालत पर वजूद में ना आएगा तो तू भी ऐसे नहीं होगा जिस हालत में अब है। बस यही अहमकानापन वजह अशकाल बना, क्योंकि इस बात की बुनियाद ही खलल और फसाद पर रखी गई। अस्सलामुअलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।